ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ ಮತ್ತು ದಾವರ್ತೆ ತಂದೆಯಂಥ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಮ ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೋ. ಮಾತೃ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 27ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 27 Psalm 27 for responsive reading. We shall read Psalm 27 as responsive reading. भजन संहिता 27वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में हम पढ़ेंगे. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरी उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े. चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा. चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई टन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूँगा. एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा का मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ. क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा. अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊँगा और उसका भजन गाऊँगा. है यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तो मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे. तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि ये यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा. अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा. तो मेरा सहायक बना है मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे. मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा. है यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरी द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल. मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं. यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता. आखिरी वचन हम साथ पढ़ेंगे. यहोवा की बाट जोता रहा, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहा. हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहा. परमेश्वर
इन वचनों को आशीषित करे। आमेन। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ। ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ परलोक प्रार्थना ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के पश्चात हम सारे लोग मिलकर प्रभु ने सिखाई हुई प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। लेट्स प्रे। ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಣುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ, ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಭಯ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯುದ್ಧದ ಭಯ, ರೋಗದ ಭಯ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಭಯ, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನ ತನಕ ಕಾಪಾಡಿದಿ. ಇನ್ನು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೀಯ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಢವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಇವರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ, ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಇವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಇವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ರೋಗಗಳು, ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಇವರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಇವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ನಡೆಸು. ಯಾವ ಕೇಡಿಕೆ ಒಳಗಾಗಲಾರದೆ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಜಯದ ಜೀವನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ತಂದೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಭವನವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಕರ್ತನೆ ಭಾಳ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾರದೆ ಭಾಳ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೋಗದ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀನೇ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಾಗ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನೀನೇ ಇವರು ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನೀನೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಭೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನೀನೇ ಬಲವನ್ನು ಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಡೆಸು ಕರ್ತನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, ಡಿಎಸ್ಗಳು, ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮೇಡಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನೀಡು ಕರ್ತನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೆರೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 11ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಯೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 11ನೇ ವಚನ. In the Old Testament, the reading is taken from book of Joshua, chapter 6, verses 1 to 11. Joshua 6, 1 to 11. पुराने नियम का भाग योशु का किताब 6 अध्याय 1 से लेकर 11वां वचन तक. 1 से लेकर 11वां वचन तक. योशुआ 6 अध्याय 1 से 11. उसी तरह नए नियम में दूसरा कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र 12वां अध्याय 7 से लेकर 10 वचन तक. 7वां वचन से 10वां वचन तक. In the New Testament, the reading is taken from 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 10. 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 10. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ರಿಂದ 10ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನದಿಂದ 10ನೇ ವಚನವರೆಗೆ 2ನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದೋಣ. ಪಹले हम पुराने नियम के पाठ को हम पढ़ेंगे. और यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था. फिर यहोवा ने योशु से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ. सो तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना. और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले. फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले. और जब वे जुबली के 7 नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे के शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे. तब नगर की शरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं. सो नून के पुत्र योशु ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो. और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए चले. फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ. और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले. और जब योशु ये बात लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के
सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे। नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले। और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और योशु ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकल ना पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया। तब वे छावनी में आए और रात वही कटी। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीषित करें। नए नियम का भाग, उस बढ़ के भाग है 2 कुरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र, उसका 12वां अध्याय 7 से लेकर 10 वचन तक। 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 10 in the New Testament. Because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. Concerning this, I implored the Lord 3 times that it might leave me. And he has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I rather boast about my weakness, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I am well content with weakness, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. May the good God add his blessings upon the reading of the portion. Amen. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಗುಡಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸು। ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಬೋಧಿಸಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡು। ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಗುರುತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ। ಇದು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಓದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಸಹ। ಏದಾಗಲೂ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಜರುಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ದೇವರಿಂದ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಿರುಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದೃಢವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ದೃಢವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಳಗಾಡಿಸ್ತಾನೆ। अगर हम देखें तो परमेश्वर के वचनों के आधार पर जो पुराने नियम के पाठ हमने पढ़ा, नए नियम के पाठ पढ़ा, पुराने नियम से मैं इस दिन बात करना चाहता हूँ। पुराने नियम का जो पाठ पढ़ा गया है योशुआ का किताब, उसका 6वां अध्याय, इस पूरे अध्याय में जो भाग लिखा हुआ है या जो घटना का वर्णन किया गया है, ये हम सभी को पता है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सी बार सुना भी है और मनन भी किए हैं और इसे अच्छी रीति से
पढ़ भी चुके हैं। लेकिन आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जो स्थिति में हम रह रहे हैं, उचित है कि इन वचनों को फिर एक बार हम ध्यान करें और देखें कि परमेश्वर आज इस स्थिति में हमसे क्या बातें करना चाहता है, हमें कैसे प्रोत्साहित करना चाहता है। प्रियो, आज का माहौल, आज की वातावरण बहुत ही भयंकर है, भयानक है, दर्दनाक है। आज हम भले परमेश्वर ने या उसके वचनों पर विश्वास करते हुए चलते रहे हैं या चल रहे हैं, तो अचानक शैतान अपना खेल खेल कर हमारे विश्वास को कमज़ोर भी करता है। और बहुत सारे लोग इसके जासे में आ जाते हैं और शैतान के उस जासे में आकर विश्वास से, परमेश्वर के ऊपर के अटूट विश्वास से वे दूर हटते जाते हैं और परमेश्वर के कार्यों से वंचित हो जाते हैं। प्रियो, इस पढ़े हुए भाग में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को जब वे 40 साल जब वे उस वीराने में या वे जब भटक रहे थे, तो ये आखिरी पड़ाव था उनका। यरदन के पार आए, यरदन के पार या उस पार चले आए और परमेश्वर ने उन्हें जिस तरह की आज्ञा दी थी या जिस तरह उनसे कहा था कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और शहद बहती हो, यानी कि बहुत ही सुंदर देश जिसका उपज भरपूर है, उस देश में ले जाने से या उस देश में जाने से पहले ये यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इज़राइलियों को परमेश्वर ने यरीको शहर को जीतने के लिए या यरीको शहर के ऊपर आक्रमण करने के लिए आज्ञा दिया। अब यरीको शहर, हम कुछ पल के लिए सोच सकते हैं कि ये जो यहूदी इज़राइली इतने साल वीराने में, जंगलों में, वादियों में और अलग अलग राज्यों के साथ युद्ध करते हुए वे चल रहे थे और इनका जो योद्धा जो थे, मिलिट्री योद्धा, वे लड़ने में माहिर तो थे क्योंकि उनका हर समय युद्ध वे लोग करते हुए निकल रहे थे, जीत रहे थे। लेकिन ये जो स्थिति अभी है, ये स्थिति अलग है, भिन्न है। यहाँ पर की जो योद्धा लोग हैं, वे लोगों ने पहली बार ऐसा देखा होगा कि ऊंचे ऊंचे वो नगर, यरीको नगर, उसके चारों तरफ या वो नगर दीवार के बीचों बीच है, उसके चारों तरफ दीवार है। और ये दीवार, इसका अगर हम देखें तो ये दीवार कोई छोटी दीवार नहीं है, ये बहुत ही ऊंची दीवार थी। ये जो स्थिति है, ये स्थिति देखकर वे लोग शायद भयभीत हुए होंगे और हम देखते हैं कि ये उनके सामने एक समस्या के रूप में था, भयंकर समस्या, बड़ा समस्या। अब तक वे लोग छोटे मोटे देश, अपना राजाओं से लड़ते हुए, जीत पाते हुए आगे निकल रहे थे, लेकिन अब इनके सामने एक ऐसा नगर है, एक ऐसा शहर है जिसमें घुसने के लिए इनकी योग्यता नहीं है। बड़ी समस्या है।
लेकिन लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने योशु से कहा कि मैं तुझे जय दिलाऊंगा, इस नगर के या इस देश का या उस प्रांत का राजा, उसके शूरवीरों को तेरे वश में दूंगा। प्रियो, सोचने वाली बात है। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे समय हम ये देखते हैं कि भिन्न भिन्न तरह की समस्या जब उत्पन्न होती है, हमें मालूम है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें जय दिलाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उन समस्याओं को देखकर हम भयभीत हो जाते हैं और हम जो रास्ते पर परमेश्वर चलने के लिए कहता है, जो जय का रास्ता है, वो अक्सर छूट जाता है और इसीलिए हम समस्या में उलझ जाते हैं। आज हम देखते हैं कि योशुआ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अमूल्य पाठ हम लोगों को वो सिखाता है, या उसके कार्यों से हम देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक समस्या है। इस समस्या, देखिए, समस्या शायद आज अगर हम सोचें तो हमें वो समस्या लगती नहीं है, लेकिन उनके लिए वो सब बड़ी समस्या थी। कैसी बड़ी समस्या? जैसे मैंने कहा कि नगर के बाइबल में लिखा है, नगर के चारों तरफ दीवार के बीच नगर। मान लीजिए दीवार अगर छोटा भी हो या कुछ सीमित हो तो उसे तोड़ा जा सकता था, लेकिन ये दीवार, इसका जो मेजरमेंट दिया है बहुत ही चौंकाने वाला मेजरमेंट है। पथरीला दीवार, पत्थर का दीवार है, ईंट का नहीं, पत्थर का है, और ये 20 फीट ऊंचा है। 20 फीट ऊंचा है और इसका जो ऊपर का चौड़ाई, वो चौड़ाई लगभग 6 फीट का है। 6 फीट का चौड़ाई और 20 फीट का ऊंचाई। इसके बाद और एक दीवार है, वो दीवार उसका 12 फीट की वो चौड़ाई है, ऊपर 12 फीट चौड़ाई है और 30 फीट ऊंचाई है। पहले 20 फीट और ये 30 फीट, और इसके बीच में रास्ता है, कनेक्टिंग रास्ता, और वो रास्ता है, वो जो चौड़ाई है उसके 6 फीट का और 12 फीट के बीच का जो चौड़ाई है वो लगभग 15 फीट चौड़ाई है, यानी कि 15 फीट का रास्ता है। तो अगर किसी को आक्रमण करना है इस नगर में तो उसे कितनी मेहनत मशक्क़त करनी होगी, सोचिए। ये दीवार तोड़ने में, वो दीवार तोड़ने में, वो एक बाग दीवार तोड़ने में उसका सारा समय निकल जाएगा। इस नगर पर आक्रमण करना असंभव है। लेकिन यहाँ पर ये जो इजरायली योद्धा लोग थे, मिलिट्री थे, वे लोगों ने ये देखा और देख के उसके बारे में जब उनको सारी इन्फॉर्मेशन जब वे लोगों को मिला तो वे लोग भयभीत हो गए। वे लोग सोचने लगे कि ये तो हमसे मुश्किल है, इस दीवार को हम पार नहीं कर सकते, इसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन योशू ने कहा था कि प्रभु उससे कहा है कि वो उसे जय दिलाएगा। परमेश्वर यहाँ पर कुछ करने के लिए कहता है कि योशुआ, इस समस्या को या इस दीवार को मैं इसे तोड़ूंगा, तुम लोगों को जय दिलाऊंगा। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या हो सकती है। हो सकता है कि हमारे जीवन में हम अपने प्रियों को खो चुके होंगे, वो हमारे लिए उस दुख से बाहर निकलने के लिए
हमें मुश्किल होता होगा। हो सकता है कि हम आर्थिक स्थिति में बहुत ही बुरी तरह गिर चुके होंगे। हो सकता है कि हमारी नौकरियां चली गई है। हो सकता है अलग अलग समस्याओं में हम गिरे हुए होंगे, बीमारी में होंगे, परेशानी में होंगे। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, और ये चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि मानो ये एक बहुत बड़ी दीवार है, हम इसके बाहर निकल नहीं सकते हैं। लेकिन हमें ये सीखना है, हमें ये जानना है कि ये सारी समस्याएं जो है हमारे जीवन में, ये डेड एंड नहीं है, यानी कि ये वहीं तक रुकने वाला या वही आखिरी स्थान नहीं है। लेकिन ये सारी समस्याओं, इन समस्याओं को हमें ऐसा देखना है कि ये समस्या नहीं, बल्कि ये हमें मौका है, वो मौका जहाँ पर परमेश्वर अपने कार्यों को करते हुए हमें दिखाई देगा, या हम परमेश्वर के कार्यों को देखने वाले, परमेश्वर के कार्यों को हम देख पाएंगे। ऐसा मौका ये होता है। पौलुस के बारे में लीजिए, जो नया नियम का भाग हम लोगों ने पढ़ा। पौलुस कहता है कि अगर उसके कार्यों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो पौलुस के कार्यों को या उसके कार्यों का तुलना किसी और से हम कर नहीं सकते। परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया उसने, तो भी वो कहता है कि परमेश्वर के कार्यों को बहुत ही अच्छी रीति से करने के बावजूद भी उसने ये देखा कि उसकी एक समस्या है। हो सकता है उसे कोई बीमारी होगी, या हो सकता है कोई, हमें नहीं पता, लेकिन वो इस तरह कह रहा है कि मेरे शरीर में कांटे की तरह चुभता है, या कांटा मेरे शरीर में है। और ये भी कह रहा है पौलुस कि शैतान मुझे बार बार तकलीफ पहुंचा रही है। शैतान तकलीफ पहुंचाना दर्दनाक, भयंकर, पता नहीं कैसे वो जूझता होगा उससे। लेकिन वो आगे ये कहता है, पौलुस इस तरह कहता है कि ये जो स्थिति में भी परमेश्वर का सामर्थ मेरे लिए काफी है। मेरी बलहीनता में परमेश्वर की सामर्थ काफी है। जब मैं बलहीन होता हूं, तब मैं उठा लिया जाता हूं। प्रियो, यहूदियों के सामने समस्या, पौलुस के सामने समस्या, तो भी इस समस्याओं को जीतने के लिए, समस्या के पार जाने के लिए, देखिए, यहूदियों के पास प्रॉमिस था, पौलुस के पास वाचा था परमेश्वर का। यहूदियों के पास ये वाचा था, परमेश्वर का वाचा। उनके पास वो आयुध थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे, परमेश्वर के जरिए से, परमेश्वर का आयुध। उनके पास उनका जो समस्या है, ये परमेश्वर की ओर से इसे बनाया गया हुआ समस्या होगा। ये वाचा उनके पास था, बनाया गया हुआ समस्या। उनको पता था कि परमेश्वर इसके ऊपर हमें जय देगा, और उनके पास ये वाचा थी कि उनके विश्वास अनुसार परमेश्वर कार्य करेगा। उनके पास ये वाचा थी कि युद्ध के दिन परमेश्वर का सामर्थ्य दिखेंगे, और उनके पास ये वाचा थी कि वे लोग जय पाएंगे इस समस्या से जो चल रही है, वो समस्या से। उनके पास ये वाचा थी कि वे लोग युद्ध के मैदान में अकेले नहीं हैं, परमेश्वर उनका साथ है। उनके पास ये वाचा थी कि ये युद्ध आखिर में वे जीत जाएंगे,
और परमेश्वर की उपस्थिति में वे खुशियां मनाएंगे। इन सारी बातों का वाचा, प्रॉमिस उनके पास था। इसीलिए वे लोग उसके ऊपर भरोसा कर रहे थे, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा कर रहे थे। और देखिए, यहूदियों के पास, जैसे मैंने कहा, समस्या के लिए उनको परमेश्वर ने वादा किया था कि समस्याओं के ऊपर जय दिलाऊंगा। और उसके अलावा, वादे के अलावा, उनके साथ इस समस्या में उनका पार्टनर था। परमेश्वर स्वयं उनका पार्टनर बना हुआ था, उनके साथ वो था। हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके संग वो था। ये लोग परमेश्वर के संग या परमेश्वर का उपस्थिति को किस तरह महसूस कर रहे थे? उसके वचन वे लोग पा रहे थे। वे लोग उसके वचन को ग्रहण कर चुके थे। उसके वचन जो कहा गया था उसके ऊपर अमल कर रहे थे। प्रियो, आज अगर हम देखें तो हमारा जो युद्ध भूमि हमारे चारों तरफ है, उस युद्ध भूमि या समस्या का एक युद्ध मैं कह रहा हूं। इसे जीतने के लिए एक सच्चा ईसाई को या परमेश्वर के विश्वासी को 2-3 बातें होना जरूरी है उसके पास, जो अयुद्ध का काम करे या उस सामग्री का या उस वेपन का काम करेगा। पहला, उसके वचन के ऊपर हमारा भरोसा संपूर्ण रीति से होना चाहिए, या उसका वचन हमारे मुंह में होना चाहिए, या उसका वचन का सामर्थ हम महसूस करते रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, उस वचन को हम महसूस करते रहना चाहिए। देखिए, इसी वचन को जब शैतान ने यीशु मसीह के ऊपर जय पाने की प्रयत्न किया, या यीशु मसीह को जब शैतान कहा कि तू ये कर वो कर, तब यीशु मसीह ने इन्हीं वचनों को, जो परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह सही रीति से उपयोग करता है, शैतान को डांटता है। जब शैतान कहता है कि इन पत्थरों को रोटी बनाकर खा, तब यीशु कहता है कि मनुष्य रोटी से केवल नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से आने वाले हर एक शब्दों से वो जीता है। प्रियो, हम ये देखते हैं कि शैतान जब परीक्षा करते समय परमेश्वर यीशु मसीह शैतान को हराने के लिए कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन वचनों के जरिए, परमेश्वर के वचनों के जरिए हमें वचनों में बढ़ना है। दूसरा, प्रार्थना। हमें प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना इसलिए करना चाहिए क्योंकि प्रार्थना, परमेश्वर कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। वचनों में वादा किया है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब दूंगा। हम वचनों में देखते हैं परमेश्वर ये कहता है कि यदि तुझे प्रार्थना करने नहीं भी आता है तो मैं तुझे सिखाऊंगा। परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएगा, हमें प्रार्थना करने सिखाएगा। प्रार्थना, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना, ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्तर पर रहना चाहिए। हम परमेश्वर के वचनों में मजबूती पाना चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना के जरिए संबंध मजबूती से जोड़ लेना चाहिए। तब इजरायली लोग, यहूदी लोग, वे लोग जीत पाए। हम भी जीत पाएंगे। हम भी हमारे समस्याओं को हम गिरा पाएंगे, हटा पाएंगे, उसके ऊपर जय पाते हुए निकल पाएंगे। भयानक स्थितियों से गुजरने वाले हम सारे लोग सुंदर स्थिति में हम चल पाएंगे। देखिए, इजरायलियों को अगर जय मिला तो वे लोगों ने 4-5 कार्य वे लोगों ने किया।
पहला, वे लोगों के पास परमेश्वर के वचन था। हमारे पास परमेश्वर का वचन रहना जरूरी है। दूसरा, वे लोग परमेश्वर पर विश्वास किए, उसके अस्तित्व पर विश्वास किए। हम भी हमारे परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना योग्य है, विश्वास करते रहना है। तीसरा, वे लोग विश्वास में कार्य करने लगे। हमें भी विश्वास में कार्य रहित होना चाहिए, विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। और वे लोग परमेश्वर के इच्छानुसार उस मार्ग पर चलने लगे। प्रियो, हमें भी परमेश्वर के इच्छानुसार उसके मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, भले कितना ही कठिन क्यों ना हो, उस मार्ग कितना ही विकट क्यों ना हो। हमें परमेश्वर के मार्ग से जाना है या परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसके मार्ग पर चलना है। तब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें जय दिया, उन्हें जय दिलाया। ना कोई तलवार से, ना कोई ऐसा आयुध जिससे वे लोग ये कह सके हम जीत पाए, हम जीत गए। नहीं, परमेश्वर ने उनसे कहा कि इजरायलियों से कहा कि 6 दिन हर दिन एक राउंड मारना पूरे शहर का, और नरसिंगे फूंकते हुए जाना याजकों से। और 7वें दिन नरसिंगे 7 बार फिरने के बाद जोर से नरसिंगे फूंकना, तब पूरी दीवार गिर जाएगी। और गिर गया। इतिहास गवाह है, बाइबल में लिखा है, इतिहास गवाह है कि यरीको नगर का दीवार टूट गया, गिर गया। बहुत ही मजबूत दीवार गिर गया। ऐसा ही होगा, कितना मजबूत क्यों ना हो हमारी समस्या, गिरना है, गिरेगा। परमेश्वर के लोग बचा लिए जाएंगे। परमेश्वर का कलीसिया जयवंत होगा। परमेश्वर के लोग जयवंत होंगे। परमेश्वर के लोग उसके, चाहे कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, उसके वाचा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, तो निश्चित वे लोग जय देख पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को इस माहौल में जय दिलाते हुए आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर आपका आशीष करे। आमेन। ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈತ್ಗಳಾಗಲಿ, ಮಂತ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಟ್ರೆಷರ್, ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಆಡೋಣ. ಈ ದಿನ ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ आज 13 तारीख मार्ता हेनरी एब्निस, 14 तारीख 14 इमैनुअल ज्ञानमित्र नाटेकर, 15 रूथ विजय कनवड़ी, रेणुका प्रकाश सुतगे, सुप्रिया इमैनुअल कंदकूर, 17 तारीख 17 नैन्सी लाजरस हिरेकेरूर. ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಈ ದಿನ 13ನೇ ತಾರೀಕು 13 ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಶಾದ್ರಕ್ ಜಾಕ್ಸನ್, ಇವರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಆಡೋಣ. ಮತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಇರುವಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ.
ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಶದ್ರಕ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಇವರು ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಶದ್ರಕ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿದೆ. 9ನೇ ತಾರೀಕು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತವನ್ನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರು. ಒಂದು ಗೌಡರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಜಾಕ್ಸನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸುತಾರ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಕುರಿ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಲೋಬೋ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಅರ್ಥರ್ ಆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಜಾನ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಗೋಸ್ಕರ, ಜೋಯಲ್ ಬೆನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಸ್ತರ್ ಆಂಟಿಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್ತರ್ ಆಂಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರೆಂगे. प्रार्थने आद नंतर ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನವನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. आइए हम प्रार्थना करें. प्रार्थना के बाद हम आशीष वचनों को पाएंगे. प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते इस समय हम आपको सारा मान महिमा गौरव देते हुए इन प्रियजनों को जो अपनी जन्मदिन सप्ताह मना रहे हैं, इन लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते विनती करते प्रभु कि इन प्रियजनों को आशीषित करें जैसे अपने जीवन के नए साल में प्रवेश कर रहे हैं. विनती करते हैं परमेश्वर की आत्मा आप इनके साथ रहिए. इनकी हर एक कष्ट, दुख, संकट, वेदनाओं को हटाते हुए इनके ऊपर आपकी सुरक्षा कवच रखकर नए साल में प्रवेश करते समय परमेश्वर की आशीषों के पात्र बनकर ये लोग रह सकें और परमेश्वर की संगति पाकर चल सके, ऐसे अनुग्रह करें. इस समय हम मार्था आंटी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. इमैनुअल नाटेकर रूथ आंटी को समर्पित करते हैं. रेणुका सुदगे, सुप्रिया इमैनुअल कंदकुर, नैन्सी लाजरस सिरेकर, इन प्रियजनों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं. इन सभी को आशीषित करें प्रभु. इनकी अगुवाई आप करें. इनको शारीरिक बल प्रदान करें, बुद्धि ज्ञान प्रदान करें और इन्हें सुरक्षा कवच ओढ़कर इनकी अगुवाई आप ही करें. नए साल में परमेश्वर के आशीषों को भरपूरी से प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुंदर रीति से व्यतीत कर सके, ऐसे अनुग्रह करें. उसी तरह मिसेस एंड मिस्टर इमैनुअल शद्रक जैक्सन, इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु. ये प्रियजन अपनी शादी की सालगिरह आज मना रहे हैं. विनती करते प्रभु कि इनके ऊपर आपकी आशीष उंडेल और पिता आपने इन्हें इनके जीवन में एक नन्हा बच्चा प्रदान किया. पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है इस बच्चे को आशीषित करें और पिता होने दे ये बच्चा और उसकी माँ तंदुरुस्त रहें, सुरक्षित रहें और पिता ये बच्चे के ऊपर आपके अनुग्रह होने दें. पिता परमेश्वर इस परिवार को आप सुरक्षित रखें और इन्हें जैसे इमैनुअल की पत्नी अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, इस रिश्ते को पिता आप मजबूत करें. हमेशा वे लोग एक दूसरे से प्रेम करते हुए परमेश्वर में रह सके, ऐसे अनुग्रह करें. फिर एक बार पिता इस परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. उसी तरह प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो इस समय कमज़ोर हैं, जो पीड़ित हैं. पिता इन प्रियजनों को आप छू लें, इनको संपूर्ण चंगाई प्रदान करें. प्रार्थना करते हैं सुतारा आंटी के लिए, कुरी आंटी के लिए, लोबो आंटी के लिए, अर्थर आंटी के लिए, जॉन इमैनुअल इस भाई के लिए, जोएल बेन इस बच्चे के लिए और इस्तर एल्जेंट इस आंटी के लिए. पिता इन सभी को आप छुए, इन सभी को स्पर्श करें. आपकी घायल हाथों से इन्हें छूकर संपूर्ण चंगाई इन्हें प्रदान करें. पिता परमेश्वर इन सारे लोगों को
नया बल से आप परिपूर्णता दें पिता। उसी तरह प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को आप आशीषित करें पिता। इनके हर एक कामों में आपकी सहायता इन्हें करते रहें। जैसे आराधना होने के बाद वे लोग दान जमा करेंगे, विनती करते प्रभु इस दान के ऊपर आपके आशीष उतरने दें, इस दान को आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग करें। और पिता इन प्रियजनों को और अधिक आपके अनुग्रह में बढ़ाएं। इनके आप आसमानी द्वार खोलकर इनके जीवनों में आशीषों की बरसात करें। धन्यवाद करते हुए फिर एक बार हम सारे लोग अपने आप को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र मधुर नाम में मांगते करके सुन और दया से कबूल कर पिता, ಆಮೇನ್। ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಉನ್ನತ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರು, ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶ್ವಸಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಸಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ